Good morning class. How are you? I hope you all will be good and safe. Children, in previous video, I have explained the chapter partnership firm. According this chapter, already I have explained the basic concepts like partnership firm and partnership deed with features. So children, also I have explained the partner's capital account with the numerical question. But today I will explain a new topic, profit loss appropriation account. So let's start. According to profit loss appropriation account is an extension of the profit and loss account. It shows how the profit loss distributed among the partner. So first of all, I have to explain the profit loss account and profit loss appropriation account difference. In class 11th, already we have prepared profit loss account. According this profit loss appropriation account, suppose the amount has remained in debit side, that is called net profit. Suppose in credit side some amount has remained, that is called net loss. After that, when we will prepare profit loss appropriation account, that time net loss will be used in debit side at the time of profit loss appropriation account. If the firm has remained net profit, it will be used in credit side at the time of profit loss appropriation account. चिल्ड्रन, यहाँ पर इसका मतलब है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा एक्सटेंशन अकाउंट है, एक ऐसा डिटेल अकाउंट है कि जहां से हमें पता चलता है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस फर्म अचीव कर रही है या गेट कर रही है उसको वो किस तरह से अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब हमने प्रिपेयर किया तो ये मोस्टली एक सोल प्रोप्राइटर के लिए यहाँ पर माना जाता है कि सोल प्रोप्राइटर जो भी प्रॉफिट या लॉस थे वो उसके अकेले के थे और वहां पर हमें उनको डिस्ट्रीब्यूट किसी के साथ करने की जरूरत नहीं हुई। बट व्हेन द फर्म हैज प्रिपेयर पार्टनरशिप, जब फर्म एक पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट प्रिपेयर कर रही है, एक पार्टनरशिप कंसिडरेशन में काम कर रही है, तो वहां पर फर्म को एक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है प्रिपेयर करना होगा। अकॉर्डिंग दिस एग्रीमेंट, फर्म ऑलवेज हैज अपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कि किस तरह से फर्म अपने प्रॉफिट या लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। So first of all children, I have to explain the format of profit loss appropriation account. According to format, profit loss account, net profit, net loss, profit loss appropriation account. If the firm has prepared profit loss account and the amount has remained in debit side, that is called net profit, and if the amount has remained in credit side, that is called net loss. When the firm has prepared profit loss appropriation account, that time net loss will be used in debit side and net profit will be used in credit side. Okay, so according to format, now I have explained the format of profit loss appropriation account. Debit side, credit. Credit always use net profit. Interest on drawing will be used in credit side. Debit, if the firm has get any loss, that will be used in debit side. Salary, suppose the firm has given the salary to the partners. Salary, commission, advances, loan, and the firm has remained, suppose the firm has remained some amount, that time it will be distributed among the partner in the ratio, that is called partners capital account. If the firm has faced any loss, it will be used as a loss in credit side and it also distribute among the partners, transferred partners capital अकाउंट। यहाँ पर ध्यान से देखिए, फॉर्मेट है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कि अगर फर्म में
प्रॉफिट है तो हमेशा प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आएगा। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा चार्ज होगा फर्म पर एज अ चार्ज होगा। यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं है, ये फर्म का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में आएगा। इसके बाद लॉस अगर फर्म फेस कर रही है, इट विल बी यूज इन डेबिट साइड। सैलरी फर्म को अगर कंसीडर किया है देने के लिए, तो सैलरी यूज होगी डेबिट साइड में। कमीशन यूज होगा डेबिट साइड में। एडवांस लोन, एक कोई एडवांस लिया है फर्म ने लोन, तो उस पर भी एक चार्ज अगेंस्ट होंगे, तो वो भी हमारे डेबिट साइड में आएगा। जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं वो हमेशा हमारे डेबिट साइड हैं। जितने भी इनकम और गेन है वो हमारे सारे क्रेडिट साइड में यूज होते हैं। इफ यहां पर सपोज फर्म को 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 1,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिला, नाउ 11,000 का टोटल प्रॉफिट फर्म को मिल रहा है। अब इसमें से फर्म सपोज किसी पार्टनर को सैलरी पे कर रही है 5,000, कमीशन पे कर रही है 2,000, एडवांस लोन है 200। इसके बाद हमें क्या करना है कि 11,000 ऑल अमाउंट विल बी डिडक्टेड। तो 11,000 में से ये सारी अमाउंट डिडक्ट हो जाएंगी, और उसके बाद जो भी अमाउंट यहाँ रिमेन होगी वो भी वहां पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Children, now I am explaining, now I am explaining example number 2. Example number 2. Children, according this question, Amit, Babu and Charu, partners are Amit, Babu, Charu. Capitals, capital 50,000, 40,000, 30,000. Respectively as their capital and agree to share profit and losses in the ratio हमेशा रेशो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड होगा 3:1। अमित इज टू पेड अ सैलरी, सो अमित को यहाँ पर मिलेगी सैलरी 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ, सो इंटू 12,000 सैलरी विल बी गेट बाय अमित। नेक्स्ट, बाबू get a commission 5,000, commission 5,000. Next, it is also provided that interest to be allowed on capital. So interest on capital will be charged 5%. 5%. Next, sorry, 6%. Next, the drawings for the year were Amit. Drawings use कर रहे हैं दोनों partners. Drawings, Amit 6,000, Babu 4,000 and Charu 2,000. Interest on drawing, already the firm has calculated interest on drawing. Interest on drawing amount 270, 180 and 90. The net profit, and at the end the firm has get 90 net profit 35,660, and the firm has prepared profit loss appropriation account to show the distribution of profit among the partner. So children, according this question, यहाँ पर देखिए हमने एक वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है। इस वर्किंग नोट में क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट थे वो सब हमने यहाँ पर लिखे। अब इससे हमें एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी कि हमें क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा और बार बार वहां पर हमें उसे रीड भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इन दिस क्वेश्चन 3 पार्टनर्स आर देयर, Amit, Babu and Charu. Their capitals 50,000, 40,000, 30,000. Ratio already has given 3:1. 3:1 is equals to 6. इसका मतलब है कि फर्म कह रही है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस फर्म को रिसीव होंगे उसको फर्म तीनों पार्टनर्स में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगी अकॉर्डिंग दिस रेशियो। ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी, Amit get a salary 1,000 per month, so is equals to 12,000 get a salary for Amit. Babu 5,000 as a commission. Okay. Next, interest on capital. The firm will be charged interest on capital according 6% per annum. Drawings, the partners has reduced the amount for personal use, that is called drawing. This amount is 6,000, 4,000 and 2,000.
Interest on drawing, the firm has already charged the amount of drawings. This is 270, 180 and 90. Net profit firm has given 35,660 and we have prepared profit loss appropriation account. तो यहाँ पर हमें इन सब ट्रांजेक्शन्स के लिए एक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है कि कैसे फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इस प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर्स। चलिए सॉल्यूशन देखिए। नेट प्रॉफिट 35,660, interest on drawing अमित, बाबू, चारू, 270, 180, 90. Total is 540. Now the total profit is 36,200. Next, debit side, Amit get a salary. Amit's salary 12,000. Next, Babu commission 5,000. Next, interest on capital. Interest on capital. How we will calculate this? Suppose Amit, Babu, Charu. Their capitals 50,000, 40,000 and 30,000. And the rate has given 6 into 6 divide 100. So 3,000 into 6 upon 100, 2,400 into 6 upon 100, 1,800. This is interest on capital. Interest on capital, Amit 3,000, Babu 2,400 and Charu 1,800. Total 7,200. Profit transferred to partners कैपिटल अकाउंट। अब बच्चे देखिए कि यहाँ पर प्रॉफिट कैसे हमारे पास ये रिमेन होगा। द फर्म हैज गेट 36,200 प्रॉफिट मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? फर्म के पास पहले था नेट प्रॉफिट 35,660 का। इसके बाद फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रही है अपने पार्टनर्स पे। तो जब ये पेमेंट फर्म को मिलेगी तो ये भी फर्म के लिए एक प्रॉफिट हो जाएगा। तो 540 का यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो ऐड हो रहा है। नाउ द टोटल प्रॉफिट इज 36,200। इस प्रॉफिट को फर्म जो है अपने पार्टनर्स में क्या कर रही है? डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्म हैज गिवन अमित सैलरी 12,000, बाबू कमीशन 5,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200। इसके बाद यहाँ पर इनको डिडक्शन करने के बाद फर्म के पास रिमेन हो जाएगा 12,000 का प्रॉफिट, जिसको फर्म अब डिस्ट्रीब्यूट करेगी अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 के रेशियो से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलिए देखते हैं। सो 12,000 रिमेन हो रहा है और किस तरह से फर्म इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। रेशियो 3:1 टोटल हो जाएगा इसका, हम प्लस करेंगे 6। 12,000 प्रॉफिट रिमेन हो रहा है, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, 2,000। अब यहाँ पर 2,000 की यूनिट हो रही है इंटू 2। तो फर्स्ट अमित को प्रॉफिट मिलेगा और 6,000, 2 इंटू 2 4,000 प्रॉफिट अभी मिलेगा बाबू को और 2,000 का प्रॉफिट रिसीव होगा चारू को। तो इस तरह से जो 12,000 रिमेन हुआ था और भी प्रॉफिट वो भी फर्म ने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से एंड द टोटल इज 36,200. Children, another I have explained a question. I hope this question will be clear. 5. Children, now I am explaining question number 5. According to this question, two partners, Rakhi and Shikha, Rakhi and Shikha are partners in a firm with capital of rupees 2 lakh and 3 lakh. So the capital is 2 lakh, 3 lakh.
the profit of the firm. So the firm has get a profit 23,200 for the year ended as per the partnership agreement. So children, हमें यहाँ पर ध्यान देना है पार्टनरशिप एग्रीमेंट. पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब कभी भी हमारे पास होगा तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे वो हमेशा फर्म में इक्वल होंगे अगर रेशो गिवन नहीं होगा. अगर रेशो गिवन है तो जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होंगे और अगर रेशो गिवन नहीं है तो वो हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे अमंग द पार्टनर्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में है एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे शेयर द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशो. तो कैपिटल रेशो इसका मतलब है कि फर्म कह रही है कि जो भी प्रॉफिट यहाँ पर शेयर होगा, प्रॉफिट या लॉस जो शेयर होंगे वो कैपिटल के रेशो से फॉलो होंगे. तो कैपिटल का रेशो बन जाएगा 2:3. कैपिटल 2:3 की है तो यहाँ से हम इसको फर्स्ट नंबर को एज ए रेशो यूज करेंगे. तो रेशो विल बी प्रिपेयर 2:3. नेक्स्ट, they share the profit in their capital ratio after allowing a salary rupees 5,000 per month to शिखा. So यहाँ पर सैलरी रिसीव हो रही है शिखा को 5,000 पर मंथ इंटू 12 इक्वल्स टू 60,000. इसका मतलब है कि शिखा को 60,000 की क्या मिलेगी, सैलरी. एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा 10% पर एनम. नेक्स्ट, ड्यूरिंग ईयर राखी विदड्रॉ, ड्रॉइंग यूज कर रहे हैं दोनों ड्रॉइंग्स. राखी विदड्रॉ 7,000 एंड शिखा विदड्रॉ 10,000 फॉर देयर पर्सनल यूज. You are required to prepare profit loss appropriation account at partners capital account. चिल्ड्रन, अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स है राखी एंड शिखा. देयर कैपिटल इज 2 लाख 3 लाख. प्रॉफिट गिवन है फर्म की तरफ से 23,200 का. पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया हुआ फर्म ने तो इसका मतलब ये डीड को फॉलो कर रही है. एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब बनता है तो हम उसे डीड से पहचानते हैं. प्रॉफिट लॉस यहाँ पर फर्म कह रही है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस फर्म को रिसीव हुए हैं उसको फर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगी अमंग द पार्टनर्स इन 2:3 रेशो एज अ कैपिटल रेशो. ठीक है, सैलरी रिसीव होगी राखी को शिखा को सैलरी मिल रही है फिर 5,000 पर मंथ. सो 60,000 की सैलरी यहाँ पर शिखा को रिसीव होगी और राखी के लिए कोई भी सैलरी का प्रोविजन नहीं है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा 10%. ड्रॉइंग्स यूज की है दोनों फर्म ने, दोनों पार्टनर्स ने 7,000 और 10,000. बच्चे, अब यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान से समझनी पड़ेगी कि सपोज फर्म ने मुझे कहा है कि हम आपको सैलरी देंगे, हम आपको कमीशन देंगे, हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. तो फर्म ने अगर हमसे ये कंसिडर किया है और ये रिटर्न एग्रीमेंट में ये सारे प्रोविजंस यूज किए हैं और जब तक फर्म मुझे ये पे नहीं करेगी तब तक ये एक लायबिलिटी फर्म पर ड्यू रहेगी. तो सबसे पहले फर्म हमेशा क्या करती है कि जो भी प्रोविजन में रिटर्न एग्रीमेंट में जो प्रोविजन यूज किए हैं फर्म ने वो फर्म को पे ऑफ करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब तक वो पे ऑफ नहीं करेगी अपने पार्टनर्स को तब तक वो उसके ऊपर एक लायबिलिटी मानी जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि फर्म के पास जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो लायबिलिटीज हैं वो पे हो पाती है या फिर नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है. फर्म को प्रॉफिट रिसीव हो रहा है 23,200. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, सैलरी. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब यहाँ पर देखिए ड्रॉइंग तो हमें गिवन है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रोवाइड नहीं किया है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यूज नहीं करेंगे. इसके बाद है सैलरी यहाँ पर रिसीव होगी 60,000. सैलरी 60,000 टू शिखा. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Interest on capital will be used on capital 2 lakh, rate at 10% into 10 upon 100 is equals to 20,000. 20,000 राखी 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव होगा एंड शिखा को 30,000 कैपिटल इंटरेस्ट रिसीव होगा. टोटल अमाउंट इज 50,000.
एंड द टोटल इन डेबिट साइड 1,10,000। अब बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिए कि फर्म ने कमिटमेंट किया था अपने पार्टनर्स को कि शिखा आपको 60,000 सैलरी मिलेगी। इसके बाद फर्म ने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा आपके लिए 10% पर एनम। अकॉर्डिंग दिस 20,000 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे विल बी गेट and the total amount will be 1,10,000, but the firm can be pay only 23,200। फर्म के पास जो प्रॉफिट है वो केवल 23,200 का ही प्रॉफिट है, तो फर्म अपने कमिटमेंट को कंप्लीट नहीं कर पा रही है और अब फर्म को यहाँ पर फेस करना होगा लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो 2:3। सो यहाँ पर फर्म को लॉस फेस हो रहा है और जो भी यहाँ पर लॉस की अमाउंट है 86,800 की, इसे फर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगी पार्टनर्स को रेशियो 2:3 में। 86,800 डिवाइड बाय 2:3 इक्वल्स टू 5। 5 से डिवाइड करेंगे so according this loss amount will be distributed among the partners in ratio 2:3। हम यहाँ पर जो लॉस की अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेशियो टोटल रेशियो से और इस तरह से 17,360 की जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पर मिलेगी। 17,360 इंटू 2, अब हम इसको इंटू कर देंगे 360 इंटू 3। यहाँ पर पास हो जाएगा राखी अमाउंट एंड शिखा। राखी को लॉस सफर करना होगा 34,720 का और 52,080, ये टोटल प्रॉफिट लॉस यहाँ पर सफर करने पड़ेंगे दोनों पार्टनर्स को इन कैपिटल रेशियो। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन में कहा है कि ऑल्सो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमें प्रिपेयर करने हैं। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स राखी शिखा। पर्टिकुलर्स राखी शिखा। फर्स्ट बैलेंस बीडी कैपिटल। बैलेंस बीडी कैपिटल इज 2 lakh 3 lakh। राखी कैपिटल इज 2 lakh, शिखा कैपिटल इज 3 lakh। नेक्स्ट सैलरी शिखा गेट ए सैलरी 60,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 30,000 20,000 30,000, total is 2,20,000 and 3,90,000। now the amount will be deducted to drawings is 7,000 and 10,000। 7,000 by Rakhi and 10,000 by शिखा। नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट क्या है, उनको लॉस सफर करना पड़ रहा है तो यहाँ पर लॉस की अमाउंट पास हो जाएगी 34,720, ये देखिए 52,080। इसमें से 2,20,000 डिडक्टेड 7,000 34,720 एंड द रिमेन अमाउंट इज टू बैलेंस CD 1,78,280, 3,27,920 and the total is 2,20,000, 3,90,000. So children, according this I have complete this question. Again I will explain.
In this question, two partners are there, Rakhi and Shikha. Their capitals 2 lakh, 3 lakh, profit 23,200, and the partnership agreement firm has prepared. Profit loss will be distributed as the ratio 2:3 according capital ratio. Say salary, Shikha get a salary 60,000. Interest on capital will be charged 10% per annum. Drawings, they have used drawings 7,000 by Rakhi and 10,000 by Shikha. And first of all, we have prepared profit loss appropriation account. प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यही जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास प्रॉफिट ही होगा, फर्म को लॉस भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको प्रॉफिट और एक क्वेश्चन आपको लॉस का एक्सप्लेन किया। प्रॉफिट 23,200, बट द फर्म हैज कमिटमेंट फॉर सैलरी 60,000 टू शिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 टू राखी एंड शिखा, and the total amount firm will be pay 1,10,000, but the firm has not amount, फर्म के पास अमाउंट ही नहीं है पे करने के लिए, तो फर्म सबसे पहले उसी अमाउंट को पे कर पाएगी जो उसके पास ऑलरेडी है, और बाकी जो भी लॉस है उसको भी फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अमंग द पार्टनर्स उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो इसी तरह से फर्म ने 1,10,000 की जो एक्सपेंसेस है वो इंक्लूड कर दिए, सारे इकट्ठे किए, और इसके बाद माइनस कर दिया प्रॉफिट, और इसके बाद फर्म कह रही है कि आई हैव फेसिंग अ लॉस 86,800, और जिसके लिए मैंने आपको दोनों को वो शेयर कर दिया। आफ्टर दैट वी हैव प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पर एक सिंगल कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो इसका मतलब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को जब प्रिपेयर करते हैं तो इसका मतलब है कि फ्लक्चुएट, हमेशा पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है, जिसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। बैलेंस बीडी, सबसे पहले बैलेंस आएगा देयर कैपिटल 2 लाख, 3 लाख, सैलरी 60,000 टू शिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, 30,000, एंड द टोटल अमाउंट इज 2 लाख 20 एंड 3 लाख 90। नाउ द फर्म हैज डिडक्ट ड्रॉइंग 7,000, 10,000, प्रॉफिट लॉस जो यहाँ पर लॉस सफर करना पड़ रहा है ये आ जाएगा डेबिट 34,720, 52,080, and the balance sheet is this amount. So children, I hope these two questions will be clear. Thank you. Goodbye.